हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स। आपका ये चैनल है, आपके लिए है। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1, जिसमें से सक्सेसफुली हमने एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 में पेपर फर्स्ट यूनिट कवर कर ली है। ठीक है, और अब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं एग्रोनॉमी के सीरीज के लिए, और जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज वो कवर कर लिया है। Recently, we have finished first unit of agriculture optional paper 1, agriculture and environment. Okay, so we are approaching towards agronomy series, and first lecture was high yielding varieties and short duration varieties. We have covered that, and now this is second lecture, and you know I am teaching you in a bilingual. Okay, हम दोनों के दोनों लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि जो हमारे ऑडियंस है, स्टूडेंट्स है, ऑल ओवर इंडिया से हैं, तो जिसको जिस लैंग्वेज समझ में आ रहा है, एनीवन हु इज कंफर्टेबल विद हिंदी और एनीवन हु इज कंफर्टेबल विद इंग्लिश, दोनों लोग देख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं एक ही चीज को एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में, मैं दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फाउंडेशन है। लास्ट वाला लेक्चर नहीं था, ये लेक्चर जो है फाउंडेशन है हमारे इसके लिए। ठीक है, एग्रोनॉमी में सबसे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपको एग्रोनॉमी में काफी प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नहीं है तो फिर आप ये लेक्चर प्लीज मिस मत करिएगा। इवन आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं तो भी कोई बात नहीं, देन आपको इससे कोर कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। यू विल गेट द कोर आइडियाज. This is the main foundation of agronomy, and all the upcoming lectures will be based on and interrelated with this lecture, because it will form the foundation of agronomy series. Okay, and you know there are 2 to 3 questions every year asked from agronomy section, so it is important and it's become your moral duty to cover this. Okay, so let's start. First we will this is the topic, concepts of various cropping and farming systems. Okay, in civil service examination only this has been written in syllabus, and in IFOS exam. Okay, what in IFOS exam, Indian Forest Services. Okay, concepts of multiple cropping, multi-story cropping, relay and intercropping, and their importance in relation to food production. It has especially mentioned in IFOS exam. So you know that I am teaching for both civil services examination and IFOS. Okay, so don't worry, we will cover. हम लोग ये सारे के सारे लेक्चर कवर करेंगे। ठीक है, इसमें IFOS के भी सिलेबस है, जितने में मैंने लाइन लगाई है, स्केच किया है, वो IFOS के स्पेशली है, बट जो हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो कोर फाउंडेशन होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे एग्रोनॉमी के। अगर आप मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। PYQs, as you know, we always discuss the PYQs before starting any topic. तो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले PYQs। First question, define integrated farming system. How can IFS, integrated farming system, improve the income of different land holding groups? Okay, asked in 2021 in 20 marks civil services examination. Okay, rice wheat crop rotation is very common in North Indian agriculture. Okay, discuss it. Okay, no problem. Discuss. UPSC has asked about discuss. Describe the advantages and disadvantages of crop rotation according to principle of crop rotation. I think this is separate question. Okay, or it may be also the combined question, and if it is combined, then it has been asked in 20 marks. Okay, so what is diversified farming? Diversified system of farming, how it is beneficial for small and marginal farmers in India, asked in 20 marks. Okay, this lecture will be also associated with GS paper 3 of civil services examination. Okay, because many times integrated farming system was asked in GS paper 3. Okay, तो हम लोग कवर करेंगे इसको
Then what is diversification? Crop diversification. Why it is more beneficial than traditional monoculture system? Asked in 2015. I hope you are getting the core idea where the questions are asked and the nature of question, because deep understanding of every topic is required in UPSC. There is a no need. There is a no way for superficial learning. So go read the deep part and overview. Take overview of any concept and deep study. Okay. Then differentiate and elaborate intensive agriculture and sustainable agriculture. What is sustainable agriculture? We will discuss it in another lecture. But while intensive agriculture we will discuss just after starting the lecture. Okay. Then explain diversification. This was also asked and repeated question. Okay. Explain intercropping, asked in 2013. So hope this story is clear to you. आप सभी को इतनी कहानी पता समझ में आ गई होगी, और जो क्वेश्चंस है मैंने इंग्लिश में डिस्कस करे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपको जो क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश में ही आपको करने हैं ना, तो हिंदी में तो पढ़ा नहीं रहा, इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ, बट जो अंडरस्टैंडिंग भी है हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है. सो वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट in English and Hindi. So don't worry, let's start our today's session. So before starting we need to look at the development of agriculture sector. In this series, in this time period, in 1900 series, population was 1.6 billion and each farmer federation 10 people. Okay, means देयर वाज नो लैंड की कोई ऐसा कोई इशू नहीं था बहुत ज्यादा कि बहुत ज्यादा फूड प्रोडक्शन करना है. बट जैसे जैसे एग्रीकल्चर में एक्चुअली पॉपुलेशन ग्रो करती गई, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन. हम आज भी इवॉल्व कर रहे हैं, कोई भी चीज है हम धीरे धीरे इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो जब पॉपुलेशन 2.5 बिलियन पहुंच गए 1950s के टाइम पे, तो क्या हुआ कि फार्म मैकेनाइजेशन यूएस में स्टार्ट हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होता 1860s के टाइम पे. देन एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो यूएसए में सबसे पहले फार्म रिवोल्यूशन एंड फार्म मैकेनाइजेशन. व्हाट इज फार्म मैकेनाइजेशन? मींस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स सच एज ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स इन कल्टीवेशन. एंड इन यूएसए एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव लार्ज एरियाज, बट इन इंडिया it is exception. Population, we are Indians and we are in top in population wise. हम दुनिया में सबसे टॉप में हैं, क्योंकि हम लोग इंडियंस भी है ना, तो कुछ स्पेशल फीचर्स है हम लोग इंडिया में, इंडियंस में. सो फिर 2000 सीरीज में क्या आया, 6 बिलियन पॉपुलेशन हो गई, हम और फूड की जरूरत पड़ने लगी, हम लोगों ने और इवॉल्व किया, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट स्टार्ट किए. वी स्टार्टेड स्पेशलाइज्ड subjects for studying like genetics, breeding and other subjects like plant pathology, because agriculture or any other field, everything is continuously evolving. Right now we are also evolving, we are moving towards high yielding varieties to biofortification, high nutritional quality foods. Okay, now you know the concept of BT cotton, BT maize and not BT maize and fortified crops of rice and wheat and many other crops like GM mustard. Last year it was launched by IARI. Okay, not IARI, this was launched from Punjabi Agriculture University, I think, or I think Delhi. Little bit confusion, but make it clear and just comment इन कमेंट सेक्शन. ओके, ताकि आप सभी को पता भी चल जाए कमेंट सेक्शन में आप कितने सीरियस भी अपने पढ़ाई में. सो अब 2030 के टाइम पे क्या होने वाला है और अभी के टाइम पे क्या यूज हो रहा है. सैटेलाइट्स यूज हो रहे हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू, प्रिसीजन फार्मिंग प्रैक्टिस हो रही है. और प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, व्हाट इज प्रिसीजन फार्मिंग? वी आर करंटली प्रैक्टिसिंग प्रिसीजन फार्मिंग एंड जीपीएस सेंसर्स वगैरह यूज कर रहे हैं. मॉडर्नाइज हो गया, मींस एक टाइम ऐसा था, देयर वाज अ टाइम when we were using these bullock carts for farming and agriculture practices. Now we moved to farm mechanization and again we specialized the every concepts, every stream,
Okay, and now we are in the age of total digital farming or precision farming. Okay, this is the little bit overview of agriculture evolution. If you need or if you want to understand in a detailed way, you can go on Google and just search. क्योंकि इतना भी टाइम नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में सारी चीजें समझें, और आपके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, सिविल सर्विसेज में ब्रॉड कॉन्सेप्ट सारी चीजें समझने होते हैं। ठीक है, तो अपने एग्जाम के टाइम के हिसाब से समझिए। हम बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि पीएचडी करने में 3 साल लगते हैं एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आई कैन एक्सपेक्ट यू हैव रेड 11th एनसीईआरटी और 11th एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें भी काफी दिया हुआ है काफी चीजें। जो 11th की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, ठीक है, उसमें भी दिया है। एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ओके, एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होता है कॉमर्शियल फार्मिंग। वी कैन ऑल्सो से इट एज अ इंटेंसिव फार्मिंग। व्हाट? इंटेंसिव फार्मिंग। Commercial farming is also known as intensive farming. Main target is to maximize the production and yield. Okay, maximize the yield for this commercial crop, because if we get higher yield, then we can get more money. We can earn more money after selling the marketable surplus. Okay. अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, हम लोग बहुत आराम से समझेंगे, बहुत ज्यादा कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें कॉन्सेप्ट समझने के लिए टाइम होता है। अगर ऑफलाइन क्लासेस होती ना तो मैं आपको इत्मीनान से बहुत अच्छे से पढ़ाता। फिर जो एक लेक्चर है वो 2 और to 3 आवर्स का चलता, क्योंकि ऑप्शनल है ना, और ऑप्शनल आपको पता है कि कहीं से कहाँ पहुंचा सकते हैं आपको, मेरिट में बाहर या तो मेरिट के अंदर। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा चल जाता है। बट यूट्यूब में आप लोगों का अटेंशन स्पान इतना खराब हो गया रील के टाइम के, आज के टाइम नहीं है, रील का टाइम है, शॉर्ट स्पॉन ऑफ टाइम, अटेंशन बहुत ज्यादा स्लो है। देन व्हाट अबाउट सब्सिस्टेंस फार्मिंग? सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उतना ही ग्रो करते हैं जितना उनको नीड होती है। बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर इनपुट्स नहीं अप्लाई करते हैं, जितनी उनकी बेसिक डिमांड होती है वो पूरी हो जाए और थोड़ा सा मार्केटेबल सरप्लस हो जाए, ताकि मान लीजिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी दे कैन यूज दैट स्टोर्ड प्रोड्यूस। ओके, बट इन कॉमर्शियल फार्मिंग the main target is to profitability, increase the production. So for to increase the production we need high yielding varieties, improved cultivars, they are also similar, but we also need irrigation facilities, fertilizers and many other things like pesticide, herbicides to increase the yield and reduce the population of weed and pests. हम लोगों को क्या जरूरत होती है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी जरूरत होती है उतना ही जो फार्मर होता है उतना ही प्रोड्यूस करता है, मींस उसकी फैमिली जितने में सस्टेन कर रहा है। सब्सिस्टेंस मतलब जितने में सस्टेन कर पा रहे हैं फैमिली। ठीक है, इमरजेंसी के लिए फूड स्टोर हो जाए बस, कोई बात नहीं, मार्केट के लिए कोई टारगेट नहीं है। बट इन कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि टारगेट ही यही होता है कि जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, हाँ ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन क्लास है और एक एक करके छोटे छोटे बनाने से अच्छा है कि एक लेक्चर में सारी के सारी चीजें बता दूं मैं आपको। ठीक है, वो ज्यादा बेटर थिंग है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा, जैसे देखना हो वैसे देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम। एज यू वांट टू विश, एज यू वांट टू वॉच, यू कैन वॉच अकॉर्डिंग टू योर विश। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग. Commercial farming is also known as intensive farming. So next concept is that while evolution, अब पॉपुलेशन क्या हो गई ग्लोबली, जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, मतलब अराउंड करंटली 8.5 to 9 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की. ठीक है, राइट नाउ. तो अब इतनी पॉपुलेशन है और लैंड क्या हो रही है, अर्बनाइजेशन का इशू हो रहा है, लैंड की जो सॉइल हेल्थ होगी वो पुअर हो रही है. तो क्या होगा, इस पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा. तो ये 2000 के टाइम पे और 1950s के टाइम पे स्टार्ट हो गया था, मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन. ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. हाँ, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में क्या था कि कोई भी प्रोडक्शन करना है तो उस तरीके से कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन.
या तो हम किसी फील्ड का एरिया ऑफ कल्टीवेशन इंक्रीज कर दें, ठीक है, या तो फिर हम जो पर यूनिट एरिया है उसमें से प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें। प्रोडक्टिविटी मैंने कई बार बताया है, प्रोडक्टिविटी ऐसी चीज होती है कि लेट्स सपोज एक फील्ड ऐसी है, अब इसमें से 10 क्विंटल मिल रहा है आपको, ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था उससे लास्ट लेक्चर में जो एग्रोनॉमी का है। अब हमने इसमें या तो हम क्या करें कि ऐसी वैरायटी लाएं जो 10 की जगह 15 दे, 15 क्विंटल पर हेक्टेयर दे दे, या तो फिर हम इसको कई बार ले लें, कई बार क्रॉप, 1 ईयर में कई सारी क्रॉप्स ले लें, मींस 2 to 3 टाइम क्रॉप हम ग्रो करें, तो ये होगा, तो पर यूनिट लैंड प्रोडक्टिविटी हाई हो गई, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। In traditional agriculture, there was 2 methods to increase the production to meet the demand of growing population. So, first one was that we can increase the cultivation area, okay, and another one is that we can increase the productivity per unit area for the crop. And there are what are the ways to increase the productivity? We can use high yielding varieties, or we can produce multiple crops in 1 year, okay. So there was a 2 traditional concepts to increase the production, but right now we are growing continuously and अब more dimensions बन गए, नए dimensions आए। अब हम क्या कर सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट है ना कि हम बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, फूड में क्वालिटी बढ़ा सकते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम। अब एक ही टाइम पे कई सारे क्रॉप्स ग्रो कर लें, ओके, उसी सेम जो लैंड है जितनी यूज हो रही है उसमें से हम ऐसा करें कि उसमें से कई सारे क्रॉप्स ग्रो कर लें और हायर प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन कर लें। अब या तो फिर जैसे ये है, वही कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली इंक्रीज करना है। अब हम जो अवेलेबल है, पहले नॉर्मल कहीं पे रैंडमली ग्रो कर देते थे, अब हम लोगों ने साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप करी कि किस स्पेसिंग में क्रॉप जियोमेट्री होती है, किस स्पेसिंग में हम लोगों को मैक्सिमम यील्ड मिल सकती है। तो ये कई सारे छोटे छोटे डायमेंशंस हैं। अभी हम और इसको डिटेल्ड वे में समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इन इट डिटेल्ड वे। सो इन मॉडर्न agriculture there are 2 more dimensions which were evolved to increase the production per unit time. Means while in 1 year we can grow 3 to 4 crops, or we can grow 2 to 3 crops at a one time, okay, so we will get more yield and more than 2 crops, okay. Then to increase the production per unit space we can use plant geometry techniques. What is plant geometry? Anjali ma'am will teach you what is plant geometry. If you don't know about this, the basic concepts of agronomy, just go in my channel and watch agronomy series, not UPSC agriculture agronomy series, only search #agronomy series, okay. You will get from that basic, just those lectures were only for BSc agriculture aspirants, okay. So these are 2 more dimensions in modern agriculture. अब हम क्या कर सकते हैं कि अब फार्मर्स ने क्या किया कि ट्रेडिशनल वे में इवॉल्व करते करते देख लिया कि कौन सी क्रॉप के सीक्वेंस है, किस क्रॉपिंग सीक्वेंस में, किस क्रॉपिंग सिस्टम में हम लोग को मैक्सिमम यील्ड मिल सकती है, ठीक है, और जिसमें से सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट कंसीडर करते हुए इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी अल्टीमेट गोल था पहले, लेकिन अब क्या है कि हम लोग को यील्ड इंक्रीज करनी है। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुए जिनमें से अब हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड इन मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। वी विल फोकस ऑन जीनोटाइप, वी विल यूज हाई यील्डिंग वेराइटीज प्लस शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज, एंड बोथ कॉन्सेप्ट वी हैव रेड इन लास्ट लेक्चर. So it's your moral responsibility to go and watch that previous lecture. इसीलिए मैंने पहले वो बता दिया था, ठीक है। अब आपको इसको समझना है। So जीनोटाइप हम हाई यील्डिंग वैरायटीज, इंप्रूव्ड वैरायटीज वो यूज कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज द टाइम टू डेवलप मोर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स।
अब ये बताइए कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्रॉप्स होती हैं, उनके अप्रूवल के लिए कौन कौन सी एजेंसी है या कमेटी है या अथॉरिटी है जो अप्रूव करती है, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री के अंदर में एक स्पेशलाइज्ड कमेटी है वो या अथॉरिटी है, तो वो क्या करती है कि इनको इशू करती है कल्टीवेशन के लिए। उनके इशुएंस के बिना ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं कल्टीवेट की जा सकती हैं। और इंडिया में अभी तक कौन कौन सी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो कल्टीवेशन के लिए अप्रूवल दिया जा चुका है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। Go in comment section and tell about which authority approves the genetically modified crops cultivation, okay, and it is under which ministry, okay. The second concept is geometry of planting. अब geometry of planting में क्या है कि कुछ क्रॉप्स क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर शेप में ग्रो करते हैं। ये तो लाइन हो गई, ठीक है, दिस इज द लाइन। अब एक प्लांट है यहाँ, एक प्लांट है यहाँ, एक प्लांट है यहाँ, एक प्लांट है यहाँ, एक प्लांट यहाँ, इसी तरह ये स्क्वायर शेप बन गया ना, ये स्क्वायर शेप बन गया। चेंज द कलर ऑफ पेन, स्क्वायर शेप है। या फिर हम इसको करते हैं हेक्सागोनल टाइप से, इस डिजाइन में कर सकते हैं। अब सिंगल तो नहीं होगा, पूरे फील्ड में जो मशीन के थ्रू होता है इस तरह से कल्टीवेशन किया जाता है, तो स्पेशलाइज्ड है। डिपेंडिंग ऑन क्रॉप वी कैन यूज द क्रॉप geometry of planting to maximize the yield. And there is a last third one and one important concept for increasing the production in modern techniques: management of practices. Which practice you are adopting, and management is a very essential part. Type and arrangement of crops in space and time and space. Which cropping पैटर्न यू आर अडॉप्टिंग, विच फार्मिंग सिस्टम यू आर अडॉप्टिंग, इट इज एसेंशियल। कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न यूज कर रहे हैं। अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। फिर विच वैरायटी आर यूजिंग। अब स्पेशलाइज्ड, अब क्या है ना कि लेट सपोज कोई वैरायटी है, आपको ऐसा एरिया है, रेनफेड एरिया है, तो रेनफेड एरिया के लिए क्या होगा, स्पेशलाइज्ड वैरायटी होगी। या फिर ऐसा एरिया है जहाँ पे वाटर लॉगिंग का इशू है, तो ऐसी वैरायटीज डेवलप की जा चुकी हैं कि वो वाटर लॉगिंग के लिए रेजिस्टेंट हैं, तो उनकी यील्ड नहीं खराब होगी, कम होगी, वो मैक्सिमम यील्ड जितना हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है, उतना यील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यू हैव टू सिलेक्ट द वैरायटी अकॉर्डिंगली टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सोशल कंडीशंस। मेथड ऑफ स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट मींस क्रॉपिंग ज्योमेट्री स्पेशली, and technique of sowing, which technique, not broadcasting, this is traditional method. Use machines to sowing the crop. What is sowing? I can expect you from what is sowing means बोना, खेत में जमीन में बोना, सीड को सो करना। then pest management and harvest, this is essential part of management practices, okay. So these are the basic concepts behind it. So let's move. I think हाँ, ये हम लोगों ने वही स्लाइड रिपीट हो चुकी है, this slide has been repeated. Now what is cropping pattern? Now we are in mid of lecture और हम लोग बहुत जल्दी कवर करेंगे। अब बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं, हम लोग बहुत आराम से कवर कर लेंगे। What is cropping pattern? Cropping pattern means cropping plan. Let's suppose मिस्टर अजय अब ये कह रहे हैं कि यार एक क्रॉपिंग प्लान क्या होती है भाई, ये क्रॉपिंग प्लान क्या है। तब इनको विजय क्या कहते हैं, क्रॉपिंग प्लान ऐसा चीज होती है कि मान लो हमने एक क्रॉप ग्रो करी, ठीक है, अब राइस ग्रो करा, ठीक है, खरीफ सीजन में देयर आर 3 सीजन्स, ओके, खरीफ, रबी एंड जायद। अब इन्होंने क्या बताया, ये तो इनका नाम क्या है, मिस्टर अजय, ये है विजय। मिस्टर अजय आस्किंग टू विजय व्हाट इज क्रॉपिंग प्लान, जस्ट लाइक यू आर अजय
and I am Vijay. I am telling to you. Okay. So Vijay tells to Ajay that in Kharif season I will sow in my field rice. Then in Rabi season I will sow wheat. Or then in Zaid season I will sow any vegetable crop like melon. अब विजय ने क्या कहा, अजय ने क्या कहा कि इट इज ओके, दिस इज क्रॉपिंग प्लान। मींस एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप ग्रो करना, हमारे पास कौन सी क्रॉप ग्रो करना है उसका प्लान जो होता है उसको क्रॉपिंग प्लान बोलते हैं। तो अजय को समझ में आया, ठीक है। अब विजय ने क्या, अजय ने कहा कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमें आई डोंट लाइक दिस प्लान। सो विजय सजेस्टेड टू हिम दैट आई हैव अनदर प्लान, आई विल ग्रो राइस then grow sugarcane, then grow legume crop, any legume crop. What are legume crops? Go and search in Google, okay, or you can also find out from ma'am Anjali ma'am has also uploaded the lecture in crop classification, agronomic crop classification. You can also find out from there. तो इन्होंने ये बता दिया कि सीधा झंझट ही खत्म, हम लोग एक ही क्रॉप ग्रो करेंगे, राइस रबी में, खरीफ में रबी, देन रबी में शुगर केन, और ये 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है। इसका अराउंड 4 मंथ होता है, 4 to 5 मंथ। राइस का भी 4 to 5 मंथ होता है, व्हीट का भी वैसे 5-6 मंथ होता है। तो कोई टेंशन नहीं है, इन्होंने बता दिया भाई अपने हिसाब से ग्रो करो। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस इज द स्पेसिफिक अरेंजमेंट and sequence of crops within a cropping system. What is cropping system? Just after this slide I will teach you what is cropping system. किसी भी क्रॉपिंग सिस्टम में जो क्रॉप का प्लान होता है, अब आपके पास फील्ड है, आप कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करने वाले हैं उसका जो प्लान है वो होता है क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न इज अ सीक्वेंस, स्पेसिफिक अरेंजमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स within a cropping system. Let me clear this. I think now we are in the cropping system. What is cropping system? Very important part of this lecture. First one was cropping system and this one is a second cropping system. First one was cropping pattern and now we are discussing cropping system. Earlier we have discussed cropping pattern and now cropping system. Okay, now clear. क्योंकि क्या होता है ना, लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी कंफ्यूजन कभी कभी हो जाती है। मीन्स क्या हम बोल रहे हैं माइंड में कुछ और लेक्चर में सामने कुछ और निकल रहा है। सो व्हाट इज क्रॉपिंग सिस्टम? अब हम लोगों ने क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ा, अब ये क्या है? Cropping pattern. We have read cropping pattern. So cropping pattern is cropping system is cropping pattern plus management. This is short form, don't use new writing. So cropping system is called as cropping pattern and its management. ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगा, हमें का टारगेट है, इसमें से गोल होता है स्पेसिफिकली कि हर एक फार्मर का अपना गोल होता है कि मेरा ये अल्टीमेट गोल है और इस वजह से मैं ये क्रॉप अडॉप्ट कर रहा हूँ। एवरी फार्मर हैज इट्स ओन गोल टू अडॉप्ट एनी क्रॉपिंग पैटर्न एंड इट्स मैनेजमेंट। ओके, सो क्रॉप गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रॉपिंग सिस्टम। फार्मर्स हैव स्पेसिफिक गोल्स। सो क्रॉपिंग सिस्टम रेफर्स टू द वे crops are cultivated on same piece of land over a specific period. Okay, means कोई क्रॉप है उसको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में ग्रो करना है। अब वीट को खरीफ के सीजन में तो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, वीट को खरीफ के सीजन में तो ग्रो नहीं करेंगे, या फिर वीट को जायद के सीजन में तो ग्रो नहीं करेंगे। अगर किया भी तो प्लांट मर जाएंगे, अगर नहीं भी मरे तो क्या होगा, वो सारे के सारे मतलब यील्ड बहुत घटिया देंगे, ना के बराबर देंगे। सो ultimate goal of a cropping system is that cultivation of crop in the piece of land over a specific period. We grow specific crop in the period where it is it can produce maximum. Okay, so different cropping systems are used to optimize crop production based on factors such as climate, soil types,
water availability and specific crops being grown. What it means? Cropping pattern depends on climate, soil type, water availability, specific crops. These two factors, climatic factors, water availability and soil conditions. So ये क्रॉपिंग सिस्टम इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उन्हीं के बेस पे ग्रो किया जाता है. इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड अरेंजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स in a systematic manner to achieve a specific goal. As I have discussed told you that in this there are some specific goals in cropping system, जिसमें से हम क्रॉपिंग पैटर्न डेवलप करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं और स्पेसिफिक गोल्स के लिए करते हैं कि हमारा ये मैक्सिमम गोल है. अब हम स्पेशली समझेंगे कौन कौन से क्रॉपिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है. तो इसमें हमारा मैक्सिमम गोल क्या हो सकता है? मैक्सिमम यील्ड. ऑब्वियसली एवरी फार्मर हैज द इट्स ओन विल टू मैक्सिमाइज द यील्ड. In case of if he get maximum yield, he can earn more money, improving soil health and minimize the risk of crop failure. So it's obvious. This is all about basic concept of cropping system. Cropping system बस इतना ध्यान रखिए, cropping system क्या है कि cropping pattern का management with its specific set of goals. Okay, now clear. Now look at this. क्रॉपिंग सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम. क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग, क्रॉप सीक्वेंस क्रॉपिंग एंड रटून क्रॉपिंग. दिस इज स्पेशलाइज्ड इन शुगर केन. व्हाट? शुगर केन. ओके, अब हम लोग इनको अच्छे से पढ़ेंगे. क्रॉपिंग सिस्टम के कई सारे टाइप्स होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है. What is monoculture? Very important, and UPSC has asked about monoculture, rice monoculture, especially rice and wheat monoculture. So, growing of single crop, same crop, we can say this growing of the same crop on the same land year after year. अब क्या है कि पंजाब, अब वहां पे क्या है? राइस, wheat, राइस, wheat, ये हो गया, ठीक है. अब यही क्यों ग्रो किया जाता है? एक सीजन में क्या होता है कि यहाँ पे एक मिनट में बताता हूँ. अभी ईयर आफ्टर ईयर एक ही क्रॉप ग्रो की जा रही है. अब यहाँ पे कोई लेग्यूम नहीं, ठीक है, कोई लेग्यूम क्रॉप नहीं है. दोनों पोएसी फैमिली क्रॉप है. बोथ आर द पोएसी फैमिली क्रॉप्स. नो लेग्यूम आर इनकॉर्पोरेटेड. So the basic concept of monocropping is that monocropping, or we can say monoculture, is that growing of same crop year after year. It has significant negative impacts on the environment. What? Heavy use of fertilizer, heavy use of pesticide to reduce the pests population, heavy use of water, groundwater. So it will directly affect groundwater. It will deplete it will reduce the groundwater availability. So it has many associated hazards in monoculture. So it is scientists or Indian scientists have recommended to don't use monoculture. Always grow any other farming system. So don't go for monoculture. It has significant negative impacts in the environment. What is cropping intensity? Very essential concept. What is cropping intensity? Cropping intensity ऐसी चीज होती है कि क्या होता है? नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ सीजन इनटू 100. अब ये ईयर नहीं है, सीजन है, ठीक है. एक सीजन में कितने क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं, ठीक है. तो मोनोकल्चर में क्या होगा कि एक सीजन में, रबी के सीजन में एक ही क्रॉप ग्रो की जा रही है. खरीफ के सीजन में क्या हो रहा है? तो 2 सीजन उसमें भी एक क्रॉप ग्रो की जा रही है. बट मोनोक्रॉपिंग में इसमें क्या हो रहा है कि सिंगल क्रॉप इंटेंसिटी इज ऑलवेज हाई बिकॉज इन वन सीजन ओनली वन क्रॉप इज ग्रोइंग. सो इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन अ परसेंटेज. सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत एसेंशियल है. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा. नाउ व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? हम लोगों ने पढ़ दिया क्या इसको? वेट,
think something different, some problem in this. Okay, let me change the color of pen. I think there is something issue in my slide. Growing of 2 or more crops on same field in a year. What is it? Not year, season, or we can say year. Cropping intensity थोड़ा सा confusion हो जाएगी. Cropping intensity is always more than 100. ठीक है. इसमें से क्या होता है कि एक क्रॉप को एक सीजन में, सॉरी, 2 क्रॉप को या मैक्सिमम मोर देन 1 क्रॉप को एक सीजन में ग्रो किया जा सकता है. ठीक है. क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑलवेज मोर देन 100 होगी. ठीक है. इट इज सिंपल. अब क्या है, यहाँ ईयर काट दीजिए, सीजन होगा. ठीक है. द प्रिंसिपल लिमिटिंग फैक्टर इन द अडॉप्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग इज लोअर डेंसिटी ऑफ इरिगेशन एंड पॉन्डरेंस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन वैराइटीज. तो वाटर अवेलेबिलिटी इज द मेजर फैक्टर इन कल्टीवेशन. बिकॉज अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें से बताया था कि अगस्त वाज द ड्राइएस्ट सीजन फ्रॉम लास्ट 50 इयर्स बिकॉज ऑफ अल नीनो इफेक्ट. अब व्हाट इज अल नीनो, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको. अल नीनो क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या एग्रीकल्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है कि एक ही क्रॉप को या 2 क्रॉप को या मोर देन 1 क्रॉप को एक सीजन में ग्रो किया जाता है एक ही फील्ड पे, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेम फील्ड. व्हाट आर द टाइप्स. अब इंटरक्रॉपिंग क्रॉपिंग सिस्टम में आता है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग भी उसी के अंडर में आता है क्रॉपिंग सिस्टम में. मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, सीक्वेंस फार्मिंग, रिले क्रॉपिंग. वन बाय वन वी विल डिस्कस. I think there is something issue in this section. Let me read this, then it will be clear. Wait for 1 minute. Let me clear. I think there is something issue. It is having error in my PC, but anyhow we will cover. Mixed cropping और intercropping. Intercropping का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये देखिए, एक लाइन पे क्रॉप ग्रो की जाती है. लेट सपोज this is the field. Let me change the place. ये फील्ड है. अब इनमें से कई सारी लाइंस में क्रॉप ग्रो कर दी गई स्पेसिफिक, बट इन मिक्स्ड क्रॉपिंग में रैंडमली कहीं भी स्कैटर कर दिया जाता है. अब इसमें से क्या होता है कि स्कैटरिंग कर दी जाती है और कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता. ठीक है. कहीं भी कोई भी क्रॉप ग्रो है. सीड्स आर मिक्स्ड बिफोर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप. ठीक है. मिक्स्ड क्रॉपिंग में दोनों जो क्रॉप ग्रो करना है तो उनके सीड्स मिक्स कर देते हैं एंड रैंडम ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं. फर्टिलाइजर वगैरह एप्लीकेशन, केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह एप्लीकेशन काफी ज्यादा इशू हो जाता है. क्रॉप हार्वेस्टिंग में काफी ज्यादा इशू होता है. ठीक है. देन इंटरक्रॉपिंग में होता है कि एक सीक्वेंस होता है क्रॉप ग्रोइंग का. एक लाइन पे एक टाइप की क्रॉप, दूसरी लाइन में दूसरी टाइप की क्रॉप, और मोर देन 2 और मोर देन 1 टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन इंटरक्रॉपिंग. Seeds are not intermixed. Fertilizers can be easy operations, basically easy post harvest, post sowing applications and operations. Both crops can be easily harvested. This is a simple idea behind the intercropping. Intercropping में एक बार फिर से बता देता हूँ कि intercropping एक ऐसी चीज होती है. This is the field. एक क्रॉप की लाइन ही हो गई, मीन्स एक स्पीसीज या एक वैरायटी. दूसरी टाइप की क्रॉप अब इनके बीच में ग्रो की जाएगी, या स्ट्रिप क्रॉपिंग बोल सकते हैं. फिर ऐसे ही बीच में क्रॉप ग्रो की गई, फिर से ये. ठीक है. तो ये होता है इंटरक्रॉपिंग. अब रिले क्रॉपिंग क्या है? व्हाट इज रिले क्रॉपिंग? लेट मी चेंज द कलर. व्हाट इज रिले क्रॉपिंग? रिले क्रॉपिंग इज दैट अब एक क्रॉप ग्रो करी, we cultivated only one crop and before harvesting we started sowing of another crop. मीन्स एक क्रॉप ग्रो हो रही है और जब वो हार्वेस्ट करने का सीजन आ जाए उसके पहले ही दूसरी क्रॉप ग्रो कर दें. ठीक है. एक क्रॉप हार्वेस्ट करने से पहले दूसरी क्रॉप ग्रो कर दें.
ठीक है, जैसे इस केस में क्या है कि ये क्रॉप ग्रो कर दी गई, ये मेच्योर हो गई और हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है, तो यहीं पे पहले इन्होंने लगा दी या फिर बेसिकली यहाँ पे लगाई जाती है इस स्टेज पे। तो अब एक क्रॉप खत्म हुई हार्वेस्टिंग करती, दूसरी क्रॉप ऑलरेडी रेडी है हमारी, 1-1.5 मंथ में, 1 और 2 मंथ में रेडी हो जाएगी। वी विल गेट मैक्सिमम प्रोडक्ट, मैक्सिमम यील्ड। ठीक है, इट्स मीन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लैंड। ठीक है, so this is all about relay cropping. This is again showing it's very hectic. Sometimes software issues matters affect our teaching. Even it is not deleting here. अब यहाँ पे देखिए, this is a person, look at this image, this is a person here in the field, it is growing another crop. Okay, this is another crop and using some techniques he has propagated some another plants. इन्होंने दूसरी क्रॉप का भी कल्टीवेशन कर लिया है। ठीक है, मल्टी लेयर्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि सबसे पहले एक छोटी क्रॉप ग्रो करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी बड़ी क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद फिर और बड़ी करते हैं, फिर लास्ट में क्या है मल्टीपर्पज ट्री ग्रो करते हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले नीचे वाली, फिर क्या किया, जो बिल्कुल उसका साइज बिल्कुल लो रहता है, ग्राउंड से ही अटैच रहती है, फिर उसके बाद क्या थोड़े से इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ जाए, फिर और बढ़ जाए, तो एक मल्टी लेयर बन जाती है, लेयर्ड है। ठीक है, तो मल्टी लेयर्ड बन गई, तो ऐसी क्रॉपिंग होती है। और ये ऐसी क्रॉपिंग मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिल जाएंगी, साउथ इंडिया में मिल जाएगी, कर्नाटका वाले प्लेसेस में मिल जाएंगी। ठीक है, और इसका मेन पर्पस है सब्सिस्टेंस, नॉट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, ओनली सब्सिस्टेंस। व्हाट इज फार्मिंग सिस्टम? अब हम लोग ये लेक्चर जो है ना, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होने चाहिए। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने आएंगे तो आप इसको क्या करिएगा, जो हमने वीडियो बताया है, पढ़ाया है, रिवाइज करके आना, ताकि उससे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो सकें। और जो टर्मिनोलॉजीज में कहीं इशू हो तो प्लीज गूगल भी कर लेना, या फिर कहीं भी यूट्यूब में सर्च कर लेना, या फिर कोई इशू हो तो कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, इफ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग दिस एनी टॉपिक्स, जस्ट कमेंट, और यू कैन ऑल्सो सर्च फ्रॉम गूगल टू अंडरस्टैंड दिस नेक्स्ट पार्ट, integrated farming system, and we will discuss after this sustainable farming system, organic farming system, and last one is precision farming system. Both are the very essential part, and every year or every alternate year they ask sustainable farming, integrated farming system. Integrated farming system I think 3 to 4 times has been asked in GS paper 3, so remember it. सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आइएगा, पढ़िएगा अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट कर दीजिए, और हाँ, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हो, प्लीज मैं आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ, प्लीज सेशन लाइक कर दीजिए, और जो एस्पिरेंट्स हैं उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाकी अगर कोई सजेशन हो, इफ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज कमेंट, बिकॉज मुझे कमेंट के थ्रू ही पता चला कि मेरे ऑडियंस साउथ इंडिया में भी हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया से ही हैं। ठीक है, मेरे एनालिटिक्स में भी, तो उन्होंने बताया कि प्लीज सर बाइलिंगुअल रखिए लेक्चर, हिंदी में और इंग्लिश में, तो उससे क्या होता है क्लैरिटी रहती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की। सो आई इंटीग्रेटेड बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी स्टूडेंट्स एट अ डिसकम्फर्ट, उनको कंफर्ट नहीं हो रहा था, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कहा सर हिंदी पढ़ाइए। अब मैंने हिंदी पढ़ाना शुरू किया था, तो साउथ इंडिया के और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा स्टूडेंट्स जो थे सर इंग्लिश में पढ़ाइए, तो इशू हो रहा था, तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया और बाइलिंगुअल लेक्चर स्टार्ट कर दिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड सून वी विल मीट, एंड इन दिस वीक वी विल फिनिश द होल एग्रोनॉमी सिलेबस वेरी सक्सेसफुली। सो बाय बाय, गुड नाइट, एंड टेक केयर, स्टडी वेल।